اس لیے یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم کام کرنے والوں کا ساتھ دیں، اندھ بھکت نہ بنے کسی کی۔ ہاں، آئی ٹی سیل میں اپنا نام نہ لکھوائیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سوداس نہیں بنایا ہے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے اور فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر تخت پر بیٹھے نا، یعنی کہ منبر نبوی پر، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جب تک ابو بکر دین کا کام کرتا رہے گا تب تک اس کی پیروی کرنا، اگر ابو بکر دین سے ہٹتا ہے تو کیا کرو گے؟ یہی سوال حضرت عمر نے بھی رکھا تھا۔ تو بالکل پیچھے ایک صحابی بوڑھے سے بیٹھے تھے، وہ اٹھے جوش میں، جھما کے دے تلوار نکالی اور کہا جب تک ابو بکر اور جب تک عمر ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہیں گے تب تک تو ہم ان کی پیروی کریں گے، اور جس دن ٹیڑھا ہوں گے نا اس تلوار سے انہیں سیدھا کریں گے۔ یہ جرأت اسلام دیتا ہے، یہ حوصلہ اسلام دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے میرے مصطفیٰ کے امت میں ایسے افراد بھی ہیں، عمر جیسا شخص بھی اگر ٹیڑھا ہو تو قوم میں لوگ سیدھے کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بہت سارے لوگ ٹیڑھے ہو گئے نا پیروں کی جماعت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھ بھکتوں کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ ہم نے فیض دیتے دیکھا ہے پیروں کو، جوان جوان لڑکیوں کو گلے لگاتے ہیں، کچھ دیر تک چمٹائے رہتے ہیں، فیض بانٹ رہے ہیں، پیر دبواتے ہیں، بولے فیض بانٹ رہے ہیں۔ جس کو تھوڑا ٹھیک آ گیا ہے شاید لوگوں کو بریلی سے جو جلن ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، یہاں پر لوگوں کو آوارگی تباہ کا شکار نہیں ہونے دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بریلی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ امام صاحب کون مسجد کے؟ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کتنے نمازی ہیں؟ مسلمان کتنی اس گھر ہے اس گاؤں میں؟ ایک مسجد ہے، دو مسجد، جو صورت عین کی ہوگی وہی غین کی ہوگی۔ 25 آپ کے ہاں، 25 آپ کے ہاں، 500 مسلمانوں کا گاؤں لے دے کے 2 مسجد۔ ارے ہاں، گھر 500 گھر میں، ایک ایک گھر میں 2 2 3 3 آدمی پکڑ لیے جائیں تو گھر پیچھے بھی ایک آدمی نماز نہیں۔ تو اللہ کی روزی حلق تک ٹھونس ٹھونس کے مردودوں کھاتے ہو تم لوگ، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں۔ اگر بابری مسجد جیسی اور مسجدیں ہماری لوگ توڑ دیں تو کس کے باپ کی ہمت ہے کچھ بول سکے؟ تو خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیا تاج الشریعہ کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی؟ امام اہل سنت کوئی نماز قضا کری تھی؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے کوئی نماز چھوڑی تھی؟ مخدوم سمنا نے کوئی نماز چھوڑی؟ چشتیہ سلسلے کے سارے بزرگوں نے، میرے خواجہ نے 70 سال سونے کے لیے پیٹھ کو زمین سے ٹچ نہیں کیا۔ پھر کہا کہ ڈھونگڑا کرسی پر کوئی بھی نہیں، تو راجہ میرا، اور تیرا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے دل پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ ٹٹول بندے اپنے دل کو ٹٹول، کہیں تیرے دل پہ شیطان کا قبضہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، او بے نمازی جب تو قیامت میں آئے گا تو تیرا اللہ تجھے اندھا اٹھائے گا، اندھا سورداس بن گیا ہوگا، سورداس۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو نا تو حشر کے میدان میں سرو بن کے آؤ گے، سرو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کی 16ویں پارے کی آیت ہے یہ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بے نمازیوں کو ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ اور جب وہ اندھا اٹھے گا نا سنو، کیا کہے گا اللہ سے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ارے میرے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، چکر مکر ادھر ادھر آنکھ والا تھا، میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں آنکھ والا تھا۔ اللہ فرمائے قال كذلك یونی اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس میرا پیغام آیا، نشانیاں آئی، تو نے انہیں نیگلیکٹ کر دیا، ایسے آج تجھے نیگلیکٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ بلا لینا اپنے پیر صاحب کو، پیر صاحب آج وقت آیا بخشوانے آئیے، پیر صاحب چپے سے اپنی جنت میں جانتے ہیں، تو جانتے ہیں اور دھلائی ہوگی بیٹے، دھلائی ہوگی، شکلیں مست کر جائیں مار مار کے۔ ہاں اس لیے نماز پڑھو، نماز وہابیوں کے لیے نہیں، نماز سنیوں کے لیے۔ جن پہ نماز فرض ہے بیٹے صرف جمعہ کی 2 رکعت ٹکانے آتے ہیں، اور جن پہ فرض نہیں وہ پوٹلی باندھ باندھ کے گھومتے پوری دنیا میں۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، یہ آپ کی وہ پرسنل کمائی اور امانت ہے جو نومنی کو بھی نہیں ملے گی۔ بے شک حق ہے، پہلی فرصت میں نماز پڑھ لیا کرو۔ نومنی سمجھتے نہیں آپ جو کما رہے ہیں نا، بلڈنگ، دکان، مکان، زمین، جائیداد، لائف انشورنس، فکس ڈپازٹ، اندرا وکاس پتر، کسان وکاس پتر، جتنے اتر پتر ستر ہے نا، یہ کچھ آپ کے نہیں۔ بینک والا پوچھتا ہے اگر اچانک آپ ٹرانسفر ہو گئے تو یہ مال کس کو ملنا چاہیے، تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ نومنی کو ملے گا۔ تو کوئی کہتا ہماری بیگم کو دے دینا، کوئی کہتا ہمارے بیٹے کو دے دینا، اپنا نام بتاتا جس کو مل جائے اس کے مرنے کے بعد۔ مگر وہ لوگوں، یہ عبادتیں، نماز، روزے، حج و زکات جو ہے نا، یہ کسی نومنی کو نہیں، تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں نور بن کے آئے گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے قبر کو روشن کرنے کی تیاری کر لیں۔ کسی کا بیٹا، کسی کا خاندان، کسی پردھان جی کے، سیٹھ ساہوکار کے، پگلا اہلیے، مالدار کی قبر میں کوئی چراغ نہیں جلاتا ہے؟ جلاتا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہیں پر کسی کی قبر میں چراغ جلایا گیا ہو، یا کوئی تو ماشاءاللہ کافی دنیا ترقی کر چکی ہے، اور سوچ لے بیٹے یار میرے ابا اندھیرے میں کیسے رہیں گے، چھوٹکی والی کوٹھری ہے، اوپر سے تختہ بھی لاد دیا گیا ہے، نومن مٹی بھی ٹھونس دی گئی ہے، اندھیرے میں ابا حضور کیسے رہیں گے؟ تو چلو ایک بڑھیا سا تار سوراخ کے ذریعے سے اندر ڈال دیتے ہیں، ایک لمکی والی ٹیوب لائٹ لگا دیتے ہیں ابا کی قبر میں۔ جب ادھر جائے لائٹ آئے نا، ہٹ سے بٹن دبانے، میرا ابا حضور اجالے میں آرام فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے؟
बरेली के कलंदर ने इसलिए फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाला है। बेशक फिक्र कर ले बंदे, फिक्र कर ले, वरना 40 सेकंड में पूरा मुल्क तबाह हो गया। तुर्की के बिल्डिंग में रहने वाले कब्रों में चले गए 40 सेकंड में। क्या प्लान रहा होगा उनके दिल में, कल कहां जाएंगे, कहां घूमेंगे, मार्केट से क्या लेके आएंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, बताते हैं क्या लेना है। साहब सोए थे, सोए रह गए। तकरीबन 2,70,00,000 इंसानों की आबादी आज की तारीख में -0 की सर्दी में खुले आसमान के नीचे सिर्फ बैठी हुई है। क्या नाम इस गांव का है? बिनोरा। चुप, हमारा वो जा रहा है। कई फ्लैटों के मालिक रोड पे एक पाव की भीख मांग रहे थे, बिस्किट कोई खाने को दे। उनके मकानात उनकी कब्रों में तब्दील हो गए। बेटे बाप को ढूंढ रहे हैं, कई हफ्ता गुजर गया, अब तक डेड बॉडी नहीं मिली। और बाप बच्चों को ढूंढ रहा है, कोई मां को तलाश कर रहा है। ये 40 सेकंड भी बहुत थे। मेरा रब चाहता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा रब जब किसी चीज के करने का इरादा करता है, वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है, सेकंड नहीं लगता। जब कौमें आवारा हो जाती हैं, अय्याश हो जाती हैं, हरामखोर हो जाती हैं, जालिम हो जाती हैं, अल्लाह का दौरा बड़ी तेजी के साथ पड़ता है। इंतजार करो कहीं तुम्हारा नंबर कल ना हो। पनाह में आओ अल्लाह की पनाह में, और अल्लाह की पनाह में आने का तरीका यह है, मदीने के प्यारे आका गैब दा मुस्तफा ने फरमाया, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जोहर पढ़ लेता है, असर तक हिफाजत में आ जाता है। असर पढ़ता है मगरिब तक हिफाजत में, मगरिब पढ़ ले तो ईशा तक हिफाजत में, ईशा पढ़ ले तो फजर तक अल्लाह के हिफाजत में रहता है। और फिर जुम्मा पढ़ते तो रखत की वो भी बेटे आराम से नहाएंगे, काजल लगाएंगे, सुरमा सजाएंगे, खुशबू वशबू लगा करके, और जब खुतबे वाली अज़ान शुरू होती तब बेटा निकलता मस्जिद की। कोशिश ये होती है ना, अगर इमाम भी सड़क जाए तो मुसल्ले लाके बैठे। हाँ, और टाने फैला फैला के कूद कूद के अगवा जाता है मजदूर। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो मस्जिदों में सफ़े फैलाते हुए आगे जाते हैं, वो जहन्नम में जाने के लिए खुद के लिए पुलिया बनाते हैं। तो सीखा है, पढ़ते उड़ते हो कुछ, सिर्फ भैंस पालना किए, दूध खाएंगे, घी खाएंगे, गाय भैंस चराएंगे, नदी किनारे जाएंगे, हल जोतेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, धान और वगैरह वगैरह ठूस के खाएंगे, मौज करेंगे। अल्लाह ने चाहे ना, ओ किसानों, तेरे खेत में एक सब्जा नहीं उग सकता है, ये चक्कर में एक सब्जा नहीं। वो जमीन जो बड़े बड़े नमरूद को खा गई, हामान, शद्दाद, दज्जाल, एक से एक बड़े हरामखोरों को खा गई जमीन। मगर जब किसान एक मामूली सा दाना रब की रहमत के हवाले करता है ना जमीन में, ऐसे उल्टा पलटा फेंक के आ गया किसान, फिर वो अल्लाह की रहमत के सहारे बैठता है।
3 दिन गुजरने नहीं पाते हैं, एक छोटा सा शगुफा निकलता है, 2 पत्तियां होती हैं, कमजोर इतना कि शबनम का एक कतरा गिर जाए तो कमर टेढ़ी हो जाए पौधे की, और दमदार इतना कि जमीन का सीना फाड़ कर। बेशक जैसे पौधा उगता है, कुदरत का निजाम हरकत में आता है, हवा झूला झुलाती है, चांद दूध पिलाता है, सूरज तपिश देता है, कुदरत ग़िज़ा फराहम करती है, तो एक पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल में उभरता है। हम सोचे हमने खेती करी, हमने गेहूं पैदा किया, हमें गेहूं का दाना खोल पैदा हो जाए ना, उसमें दाना भी पैदा करने के लिए आप नहीं, पूरी दुनिया रब की कुदरत की मोहताज है। बेशक हाँ, इसलिए पगलाया मत करो। अगर अल्लाह तुम्हें खुशहाल बना देना, पगलाओ मत, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो खाया वो तोद शरीफ में गया, मट्टी पली दूसरी, वेस्टेज माल, लिक्विड एक साइड में, वेस्टेज माल एक साइड में। ऐसा नहीं कि हमारे इस कंपनी में अलग अलग रूम बने हों, पुलाव यहाँ है, बिरयानी यहाँ, कोरमा यहाँ, लड्डू इधर, पपड़ी इधर, काजू कतली इधर रखी हुई, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही टंकी में। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपना काम करता है ना, मेदा चक्की चलती है, तो 2 सामान बनता है, एक लिक्विड वो सप्लाई कर दिया जाता है, और एक वेस्टेज माल, उसको ज्यादा देर तक आदमी पेट में रख नहीं पाता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में देखा हमने, जो म्युनिसिपल की तरफ से बाथरूम बने होते हैं ना, 15-15, 20-20, एक के सामने 20-20 लोग खड़े हुए हैं। अभी एक जनाब अंदर तशरीफ ले गए हैं, शायद बैठ भी नहीं पाए होंगे, या ज़ारबंद खोला होगा अभी। अरे इससे पहले कि उनका नंबर आए, पैजामे खराब हो जाता है। देखा नहीं देखा, गए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, हम गुस्ल भरा बना जाता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि जी हम खा करके मुश्तंदे बन जाएंगे, बिल्कुल। कोशिश करो हलाल रोजी खाने की, सूखी रोटी खाओ मगर हलाल की हो। अल्लाह ने इस पे दम रखा है। इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा ही ख्वाजा गरीब नवाज को दिया था ना, तब जाके अताए रसूल बने थे। रब ने दम रखा है हलाल रोजी में। कितने ऐसे हैं जो मिड़िए जोत लेते हैं, मोटका वाला फार लगा लेते हैं, क्या बोलते उसको, तो ऐसा होता है। हाँ, यूं दबा देंगे पूरी मेड़ गया, चलो 4 अंगुल हमारी जमीन बढ़ गई, अपनी खबर बढ़ा ले। गांव वालों ने तो तेरी डेड बॉडी ना कर तेरी खबर बनाई है, थोड़ा इतना आगे सरहाने छोड़ दिया, थोड़ा पैखाने, जैसे कोई मरता है ना तो उसकी बॉडी नापी जाती है। हाँ बस ठीक है इतना, हाँ जी ठीक है, इतना गहरा इतना चौड़ा, बस बढ़िया ठीक है। अब जनाब को ला करके हिसाब से रखा जाता है, ऐसा पैक करते हैं उसको कहीं से भाग न सके। क्या बेचारे ने जुल्म किया यार, आपके अब्बा थे, अम्मा थी, सरपंच महोदय साहब थे, सेठ साहब था, साहूकार थे, आखिर क्या गलती कर रहे? नहीं बैठा। अच्छा, जितने लोग मरने वाले पे रोते हैं, अगर मुर्दा जब कब्रिस्तान तशरीफ ले जा रहा हो कंधों पे और उठ के बैठ जाए, तो जितने मोहब्बत करने वाले ऐसा भगे के पटक करके बैठने रास्ता नहीं पाएगा। यही होगा ना। रोना तो बहुत आता है। कब्र में जो है, कफन में जेब नहीं होती है। चलो यार 10 10 60 10 70, चलो 70 रुपया मिला तो हमारी कफन में रख दिया। कफन में जेब होती है? अरे आपके गांव में कफन में जेब रखी जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं रखी जाती है।
अब अगर आप ये प्लान बनाए हमने बड़ा पैसा वैसा कमा लिया है तो चलो कुछ रुपया अपने जेबी में रख के चले जाएंगे, कब्र में काम आएगा, दुकान में कुछ खरीदे नहीं कोई ले जाता है। हमें अभी मरना हुआ नहीं है, मरा नहीं बुड्ढी थोड़ा आंखें फटक रही हैं, चुपके बेटे कोई अंगूठी निकाल रहा है, कोई चूड़ी निकाल रहा है, कोई बाली निकाल रहा है, कोई चाबी घुमा रहा है, जल्दी से कब्जे में ले लो। वो देखते टुकुर अभी से हाँ जी अभी से जैसे गए हाँ वो खत्म कहानी। 2 दिन पो रोएंगे, उसके बाद हाँ हम 3 भाई हैं 2 बहने, इसका कितना हिस्सा है, उस हिस्से के लिए लठियां चल रही है। कितने तो ऐसे हैं अभी कब्र में रखा था, कब्रिस्तान में लड़ाई शुरू। गुज़िश्ता साल मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में एक बाप को बेटों ने रखा, अभी कब्र में रखा था, ऊपर से जो है ईंट भी नहीं लगाई थी, वो मार वो पटकी नहीं पटका, अल्लाह पर पैसे दे दे। मेरे आका फरमाते हैं बंदे ने जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वही तेरे काम आने वाला है। ये मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, ये जरूरी नहीं कि आपके चंदे का नाम का ऐलान बनाने। साहब सेठ जी ने 500 रुपए दिए सठिया करके चुपके दिया करो चंदा, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए फरिश्ते लिखते हैं किसने इखलास के साथ अल्लाह की राह में खैरात करी, नेक काम किया है, ठीक है ना? तैयारी कर लो, कोई किसी की खबर में नहीं जाता है, अकेले में जाना है। जिन मियाँ जी को 8 इंच के स्पेंच वाले गद्दे पे नींद नहीं आती ना, ऐसे सुला दिए जाते हैं। अल्लाह खलकना को वो फिहा नुईदुको व मिना नुखरिजुको तारता नुखरा। अब आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो चले। ये हो रहा है। और अब तो ये उम्मीद भी मत रखिए कि मरने के बाद आपकी औलादें जो है वो आपके लिए फतिहा पढ़ने आएंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, इसलिए कि फातिहा वगैरह पढ़ने का हौसला कब पैदा होता, जब ये मोबाइल की दादी अम्मा नहीं आई थी ना, तो तब तो कुछ समझ में आता नहीं था। अब तो अगर घर में 5 आदमी ना, पांचों पगलाए पड़े रहते बेटे, पांचों के पास लंबा लंबा मोबाइल है, एक उस कोने में पड़ा हुआ, एक वहां बैठा हुआ, एक उधर बैठा हुआ, छोटे से लेके बड़े तक, और वो कानों में भी ठूस लेते हैं। एयरफोन अच्छा वो अकेले कोई दूसरा देख ले तो जल्दी पकड़ा। हाँ ये मुशाहदा है, मुशाहदा। खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए ना, कोई चिल्लाए खूब, अरे तेरे घर में आग लग गई, लगने दे, हम तो सुनते ही नहीं। 5 के 5 मरे जा रहे हैं, स्वाहा हो जाए जल गए। तो जब से ये तशरीफ ले आई ना मोबाइल की दादी अम्मा, तब से अदब, हया, वकार, इंसानियत, बुजुर्गी, छोटे बड़े का लिहाज सब दफन हो गए कब्र में। सब मसले अपने हाल में, पूरी रात मरदूद, ठंडी है तो रजाई ओढ़ कर। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद सिलसिला चिश्तिया की अजीम पेशवा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर में से आते हैं। उन्होंने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जन्नत के अंदर जो दुनिया की औरत मेरे निकाह में आएगी, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। शौक होता ना, हाँ यहाँ तो पहले ही हम बैठे ढूंढ डांट करके यार दिखा दे। अल्लाह ने कहा एक मैमूना सौदा नाम की औरत है, एकदम काली कलू की, जैसे मेरी टुकड़ियां नहीं की, हाँ एकदम काली काली, वो फला जगह रहती है, बकरी को चलाती है। इनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, एक बार ज़ियारत फरमा ले। चले ढूंढते
जंगल के किनारे गए ना तो देखा कि एक औरत है एकदम काली काली और वो नमाज में मशगूल है और उसकी बकरियां जो चल रही है, शेर उसकी बकरियों के आसपास खड़े हुए उसकी निगरानी कर रहे हैं। अब ये इस इंतजार में खड़े रहे कि कब सलाम फेरे तो सलाम टिकाऊं मैं। वो लंबी लंबी रकातें पढ़ना, देर देर तक सजदे करना, बहुत देर तक खड़े रहे। तो जब उन्होंने सलाम फेरा ना तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद। कहा तुमको मेरा नाम किसने बताया? कहा जिस अल्लाह ने तेरे को पता बताया ना मेरे को कि मैं इधर रहती हूँ, उसी अल्लाह ने बताया है कि तुम मुझसे मिल लिया। उसी अल्लाह ने बताया। लेकिन अब्दुल वाहिद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया थे? अल्लाह, ये तो बता। यहाँ बेटे मौका ढूंढते हैं, एंगेजमेंट से पहले ही तलाश जुस्तजू, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ चाउमीन खाना खिलाना है, कहाँ पर जो है पानी पूरी खाना खिलाना है, किस मेले में जाना है, इधर कई इलाके में जाना हुआ मेला भाई में। अरे नकाब पहन के हजरत औरतें झूला कूद में कूदती हैं। खबीसा एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों औरतें। बुजुर्गों के उर्स तो मेला बन गए, मेला ठेला। जलसे भी मेला ठेला बनने की कगार पे पहुंच गए। हाँ, तो एक बहाना मिल जाता है बदमाशी करने का। तो पूछा मैमुना ने, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, मुलाकात का वादा जन्नत में था, यहां कैसे आ गया? कहा मैमुना सबसे पहले ये बता कि तूने तेरी बकरियों को क्या पढ़ा रखा है कि शेर इसकी हिफाजत पे लगे? मैमुना ने कहा कि मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, तो शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। मैमुना कुछ नसीहत फरमा। आप पहली नसीहत तो ये है जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना, एक सूत आगे मत। दूसरी नसीहत ये है दोबारा पलट के इस तरफ नहीं आना। कहा तीसरी और आखिरी नसीहत ये है चुपचाप चले जाओ और अल्लाह की याद में ऐसे गुम हो जाओ, खुद को भूल जाओ खुदा की मोहब्बत में, तब जाके ये मकाम।